اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ برابر اس حدیث کو آپ سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ بہتر انسان وہ نہیں جو ڈاکٹر بن جائے، جو پروفیسر بن جائے، انجینئر بن جائے، نیتا بن جائے، منسٹر بن جائے، وہ بہتر نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو۔ اور آج آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کی اس مجلس میں کم لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ، انسان تو انسان، اتنے فرشتے آئے ہوئے اس محفل میں، مجلس میں، کہ کیا کہنا، بھرے ہوئے ہیں مجلس فرشتوں سے۔ اور یہیں پر فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہاں سے لے کر آسمان تک کا تاتا لگا ہوا ہے، اتنے فرشتے آپ کو اپنے سائے میں لیے ہوئے۔ بڑے بہترین خوش نصیب آپ لوگ ہیں۔ ہمیں سنا ایک بچہ عارف نام کا ہے، ایک بیٹھے میں پورا قرآن سنا دیا، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج ایک اور بات سننے کو آئی ہے، ایک ایسا بچہ ہے جو آپ سے 9 مہینہ کے اندر اندر حافظ قرآن بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ ہم بھی بہت زمانہ سے پڑھاتے آئے ہیں۔ ہم لوگوں کے زمانے میں جو لوگ پڑھتے تھے 2 سال 2.5 سال 3 سال میں جو لڑکے حفظ کر لیا کرتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے بہت ذہین والا لڑکا ہے، بہت تیز ہے، بہت جلدی حفظ کر لیا ہے۔ لیکن آج یہ خواب پورا ہو گیا، آج سپنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 8 مہینہ 9 مہینہ میں، 8 مہینے کے اندر میں سال بھی نہیں لگا اور مکمل حفظ کر لیا۔ محمد حسین نام کا لڑکا ہے، باپ کا نام محمد شمیم شیخ ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے سینے کو چھاپا خانہ بنا دیا ہے اور اس میں چھاپ کے رکھ دیا ہے۔ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سنا تک نہیں تھا، آج ہم سنے بھی ہیں، دیکھے بھی۔ الحمدللہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے طلبا، ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ لوگ خوب محنت کریں، مکمل حاصل بنیں، اور بننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں، یاد رکھیں اس کو سینے میں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، ایک یہی کتاب ہے، پوری زندگی آدمی پڑھتا رہے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم کوئی نئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ دوسری کتاب کو ایک بار پڑھ جائیے، 2 ختم کر دیجئے، 3 ختم کر دیجئے، کہ پڑھے ہوئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن پوری زندگی لوگ پڑھتے ہیں، وہی چاشنی ہے، وہی مٹھاس ہے۔ اللہ اکبر، اچھا لگتا ہے سننے میں اور پڑھنے میں بھی، ایک یہی واحد کتاب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایسا ایک اللہ کا کلام ہے اور ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین نے نظر کیا ہے کہ کائنات میں ان کا جوڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہ قیامت ہونے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ہم سر، میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، اور ایسی کتاب بھی نہیں ہے کوئی، وہ کتاب ہے، اور جس کے سینے میں آ جائے اس سے بہتر انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ آپ ہے، سب کے اندر شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں علم کو، اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنے اس چھاپا خانے میں، پریش میں چھاپ کے رکھ دیں۔ آپ کا سینہ پریش ہے۔ اللہ اکبر، سیلاب کے مہینے میں پانی بھاگتا ہے بہت تیزی سے، مطلب بہت تیز بھاگ رہا ہے، ارے اس سے بھی تیز تو آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، جب طلابی لوگ پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہم گئے تھے، مرمت پور گاؤں کا نام ہے، پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن سن کر کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، ہم کو کون تعریف پڑھا دیا، اتنا تیز، یہ تو زیادہ سے بھی تیز ہے، وجہ سے بھی تیز۔ ہم نے کہا آپ جی کیسے پڑھا دیا، ذرا ٹھیک سے پڑھائیے، آدمی بگڑ گیا وہاں کا، آپ کبھی نہیں سنے، بہت یاد ہے اس کو، نہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔
जहाजों से तेज, बुराक से भी तेज नहीं, हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों के अंदर कुरान को छाप कर रखते हैं। और हम दुआ करते हैं जो इस मदरसे की मस्जिद के जो बानी हैं, जो उसके सीख रहे हैं, वो हाफिज मंजर इस्लामी है, मौलाना मारूफ सालफी है, दोनों की मेहनत मशक्कत से तवज्जो से अल्लाहु अकबर इस इशारा को आप यहाँ देख रहे हैं। हम तो यहाँ के वासी हैं, हम तो सब कुछ जान रहे हैं, उनके बड़े भाई हमें हैं। यहाँ क्या हुआ था? जंगल था, कुछ नहीं। जब मस्जिद की बुनियाद पड़ी थी लोग हंस रहे थे, मुर्दा पड़ेगा यहाँ, जिंदा कहाँ से आया? क्योंकि कब्रिस्तान बगल में थी। हम लोगों को बहुत कुछ कहा गया, हम लोग सहते गए, सब्र करते रहे। आज अल्लाह ने दिखा दिया है और सब लोग खामोश हो गए हैं कि मुर्दा पढ़ेगा कि जिंदा पढ़ेगा। और कहाँ के थोड़ गांव के लोग आके पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम तकरीर का मुकाम नहीं है, वरना बहुत लोग के घंटों बोल सकते हैं। ये कुरान ऐसी किताब है कि जिस मकसद से आप पढ़िएगा कामयाबी मिलेगी। एक चोर का डकैत 100 चोर, 99 चोर का एक सरदार था। डकैत गया एक आदमी के घर में चोरी करने के लिए, सैन खोद लिया है। जब घर के अंदर दाखिल होने लगा, जाने लगा, तो कुरान करीम की आवाज घर के अंदर से आई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। चोरवा जो था डकैत वहीं पर रुक गया, खड़ा हो गया। पावर देखिए कुरान में कितना पावर है। रुक गया डकैत का सरदार। क्या मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया है, टाइम नहीं आया कि उसका दिल अल्लाह की खौफ से कांप जाए? तो डकैत कहता टाइम आ गया है, टाइम आ गया, दिल मेरा कांप गया है, थरथराहट पूरे जिस्म में है। डकैत वहां से वापस आ गया, घर में नहीं घुसा, वापस आया और सब चोरवा के बढ़ा देगा, रे साला टाइम आ गया। क्या बात है? टाइम आ गया, खोज का टाइम, मरने का, रे मरने का नहीं, बदलने का टाइम आ गया। सब बदल जाओ, सब ईमान वाला बन जाओ। हम एक कुरान की एक आयत करीमा सुन के आए हैं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। सब चोरवा बदल गया, वो जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग बन गए, अल्लाह वाले हो गए। हजरत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह लोग अदब से नाम लिया करते, वो थे डकैत के सरदार। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, पावर देखिए। एक आदमी गए थे लड़ने के लिए, उमर फारूक ने फौज को भेज दिया है मिस्र, लड़ाई लड़ी गई, कामयाबी मिली, जीत गई फौज। अब जब वहां से लौटने की बारी हुई, एक ही रास्ता था। ईसाइयों ने क्या किया? जवान जवान खूबसूरत लड़कियों को लाकर सड़क पे खड़ा करवा दिया, बेहतरीन लिबास पहन कर लड़कियां आके खड़ी हो गई रास्ते के किनारे, और कह दिया ईसा ने कि मुसलमानी फौज जब गुजरने लगेगी तो तुम लोग नाचना थरकना शुरू कर देना, ताकि ईमान खतरा में पड़ जाए, इसका ईमान बर्बाद हो जाए। हाँ, सारी लड़कियां खड़ी हो गई। अमीरुल मोमिनीन जिनको भैया था सिपह सालार बनाकर हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो खत लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम लोगों की तो जीत हो गई है, लेकिन हम लोग यहाँ से वापस कैसे आ सकते हैं? एक ही रास्ता है। ईसाइयों ने लड़कियों को ला करके सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। सारी लड़कियां नाचने गाने के लिए तैयार है कि मुसलमानी फौज गुजरेगी तो नाचना थरकना शुरू कर देना, ताकि ईमान खतरा में पड़ जाए। क्या करें, क्या किया जाए? रास्ता एक ही, कोई रास्ता दूसरा है नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आयत करीमा पढ़ के सुना दो, एक आयत करीमा। कुल लिलमुमिनीना यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। बेगुल बजाओ, सबको इकट्ठा कर लो। जब सारे लोग जमा हो जाएं, एक आयत करीमा पढ़ के सुना दो। बेगुल बजाया, सारे लोग जमा हो गए और सिपह सालार हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनाते हैं पढ़ के, कुल लिलमुमिनीना यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अरबी गाते, अरबी लोग जानते थे
तो चलो चलने लगे। आप लोग तो नहीं जानते, हम सुना देते हैं कि मुसलमानों से कहो निगाह को नीचे करके चला करें। हाँ, तिरछी निगाह से भी कोई किसी को ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है कि वो कर रहे हैं। सारी फौज गुजर गई, लड़कियां थड़कने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, खौफ तो अल्लाह से। एक भी आदमी मुड़ के नहीं देखा कि लड़की कैसी है, कितनी खूबसूरत है, क्या पहनी हुई है, किस तरह नाच रही है। जोर जोर से जब सारी फौज गुजर गई है तो लड़के कहने लगे कैसी अंधी गूंगी फौज है, अरे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं। तो जो सिपाही सबसे पीछे थे वो कह देते हैं कि कोई हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, निगाह उठा के किसी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक आयत करीमा सुन के आए हैं। लड़कियां कहने लगी उठाने वाले चाहता जा, जरा वो आयत करीमा पढ़ के सुनाता जा। कासवन कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम ज़ालिका ज़िक्रा मिनल्लाहि ख़बीरुन बिमा यस्नऊन। एक आयत करीमा में पावर देखिए, वो सैकड़ों लड़कियां जो नाचने वाली थी सब खामोश हो जाती हैं, बिस्मिल्लाह करके पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब मुसलमान बन गए। वो कुरान है, मामूली चीज है जिसको आप सीने में रखे हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सीने में वो हिफाजत के साथ कुरान को रखे। आज इसके बानी मबानी हैं, मेहनत करने वाले हैं, सीखने पाने हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह उनके नाम ईमान में नेकियां भर दें। अल्लाह जो हाफिज मंदिर आलम है, मौलाना मारूफ सल्फी है, उनके भी नाम ईमान में ईमान को नेकियां से भर दे। और एक मदरसा नहीं, हमने कहा था इससे पहले भी, 2 मदरसा लड़कियों का एक है और तीसरा भी स्कूल खुल गया है, सब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाते जा रहा है। हम दुआ अल्लाह से करते हैं अल्लाह और इस इलाका को फलता फूलता जीता जागता बनाए। अल्लाह हम सब मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, शिर्क बिदअत से महफूज रखे और ये कुरान हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।